Good morning, children. First of all of you, congratulations that you participated in oral exam with a full of enthusiasm and eager, and asked so many queries which is necessary to solve them. So today, because of some queries of chapter 14, I'm giving back as a revision work. Chapter 14 as a revision work because it's coming in your upcoming exam also. So today I'm going interesting one example. The chapter 14 is saying what the chapter is 14 is saying. Chapter 14 is saying that changes is happened everywhere, and our earth surface also changes it there. Mountains and oceans and land and forest and that plain surface, always they are changing with the passage of time, with the temperature, with the wind, with the water, with the river. They are changing gradually. It is a gradual process, so we can't imagine, or we can't observe these things that 20 years back the mountains of our town was not same, and 50 years back or 100 years back our city and our mountains and geographical reason is not the same as we are watching present at present. So it's a gradual external process is very gradual. So it is happened by so many reason, by natural reason also, or by biological reason also. We are human being are responsible. So I'm giving one interesting example of changing the mountains here. Okay, today I am showing you one stone which I get from the when near Sariska, where Ravli oldest mountain is there, the Black Mountain is there, where I get from this stone. In this stone there is a particular shape, and the rough surface is there. So this surface and this line, it can be by the effect of water, air, wind, and with the passage of time the stone shape like this change like this. Earlier the Aravalli stones was very high, and the peak might be very high, but right now they are little one. So with the passage of time they are shrink, and the shape gonna change like this. So today we will talk about all these changes of surface of our earth. Yes, children, today I'm going to take chapter 14 as a revision because it's coming in our second exam, and some of the students asking for the revision. So today I'm take as a revision chapter 14. So chapter 14's name is showing the process is changing the face of the earth. Means whatever happen change on the earth's surface, we will cover that changes, like soil, how to make a soil, and weathering, erosion, moss movements, landslide, mudslide, etc. The physical, internal and external change. As we know that internal changes also happened in our earth, but we can't see. But the external changes we can see on our eyes. So first of all, what is external changes? These are external changes, soil erosion, and the landsliding, and how to make a soil with the rivers, and these changes are there. So how, first of all, external process, what is external process? External process, it's a natural process which take place gradually on the surface of the earth, are called external process. Like these are three example of external changes are there, like weathering, erosion, and moss movements. In a moss movement we have landsliding and mudsliding and these thing. इरोजन मतलब भुरना, किसी चीज़ का धीरे धीरे ख़त्म होना, जैसे पहाड़ है उसके पार्टिकल्स नीचे निकलते रहते हैं, जैसे बड़े बड़े ड्यून्स हैं वो ख़त्म होते रहते हैं, है ना. सरफेस चेंज होती रहती है हर साल. माउंटेन्स में कुछ, माउंटेन एरिया में कुछ चेंज आता है. विदरिंग मतलब छिर्ण होना, उस चीज़ का पार्टिकल गिरना, चाहे वो माउंटेन हो, चाहे वो लैंड हो, सरफेस हो, प्लेन हो, चाहे प्लेटू हो, उसमें ये कहलाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक विदरिंग. Withering definition: the process by which the rocks exposed on the surface get broken into smaller pieces is known as withering. Withering means जो भी जो surface है उसका रॉक का या इसका एज का, वो धीरे धीरे छोटे छोटे पीसों में गिरना ही विदरिंग कहलाता है ना. और इसके फैक्टर क्या क्या होता है? उसका प्रेशर मान सकते हैं हम, टेम्परेचर मान सकते हैं इसका, है ना. व्हेन द टेम्परेचर फॉल इट्स फ्रीज एंड एक्सपेंड,
So winds, these stones cracked into the pieces, and the air loaded with the sand also works like a sandpaper, striking against the rock, especially when it takes in the shape of storm. It rubs. So these things can happen in withering, and because of the withering, erosion is happened. What is the erosion? Here in the first we have covered the definition. The act of carrying away the withered particle from one place to another place is called erosion. जो विदर्ड पार्टिकल गिरे हुए हैं उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना ही इरोजन कहलाता है. अब वो किसी भी तरीके से जा सकता है, हवा के साथ जा सकता है, रिवर के साथ जा सकता है, रेन वाटर के साथ जा सकता है, ग्लेशियर्स के साथ जा सकता है ना. सो इरोजन, these are the agent. Rivers, rainwater, glaciers, waves and winds carry away the withered particles from one place to another place. अब क्या क्या फैक्टर है इरोजन के भी? वही सेम फैक्टर है. रेनफॉल, टेम्परेचर, स्लोप ऑफ द लैंड, ढलान, टाइप्स ऑफ लैंड, लैंड का टाइप क्या है, चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न. लैंड में चेंजेस होते हैं, या तो कई बार नेचुरल डिसास्टर की वजह से चेंज होते हैं, या कुछ सालों बाद अपने आप सरफेस चेंज होता है, या फिर ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी की वजह से चेंज होता है. जब हम लैंड को यूज़ करते हैं, जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को बनाना है, एग्रीकल्चर लैंड में बनाना है, तो सारे फॉरेस्ट के जो माउंटेन्स जितने भी वहाँ पे ट्रीज़ हैं उसको हम काटेंगे तब प्लेन बनेगा. तो ट्री की कटने की वजह से वहाँ पे क्या होगा? इरोजन बढ़ेगा. लैंड जो सरफेस की ऊपर की सॉइल है वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी. किससे? हवा से, पानी से, या से रिवर के फ्लो से, है ना. ये सब उस पर चली जाएगी, है ना. द प्रेजेंस ऑफ वेजिटेशन की वजह से भी चेंजेस आते हैं, है ना. दीज आर द इरोजन. सो अब विदरिंग में द प्रोसेस ऑफ एक्सपोर्ट, विदरिंग मेन 3 टाइप की होती है: फिजिकल विदरिंग, केमिकल विदरिंग एंड बायोलॉजिकल विदरिंग. फिजिकल विदरिंग में क्या होता है? जो फिजिकल चेंज होता है, रॉक्स जो होती है वो टूट के गिरती है, उसमें आउटर जो सरफेस होती है उसमें चेंज आता है. आपकी बुक में भी ये पिक्चर दी हुई है, एक रॉक है उसमें बनी हुई है ना. ये फिजिकल चेंजेस हो गए. केमिकल चेंज में क्या होता है? केमिकल चेंज में ये होता है व्हेन ए केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर एंड एयर सर्टन पोर्शन रॉक्स आर डिजॉल्व प्रोड्यूसिंग इंटरेस्टिंग फीचर, कैविटी, सिंक हॉल एंड कार्बन्स. केमिकल में कुछ रॉक्स जो रहती है वो माउंटेन में केमिकल प्रोसेस के जरिए हवा से या पानी से मिक्स होके वो बह जाता है, और फिर बड़े बड़े उसमें माउंटेन के अंदर बड़े बड़े होल या सिंक होल या कैविटी जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं. ये है केमिकल विदरिंग. Biological withering में animals and plants also play important role in the breaking of the decay and loosen the rocks because of the pressure, heat and these are the factor. Plants grow in a rocks, their roots cause cracks in the rock and break them. The roots of the plants also produce acidic juice which cut the rock material. तो बायोलॉजिकल वेदरिंग मतलब एनिमल भी उसमें इन्वॉल्व है, प्लांट्स भी इन्वॉल्व है और ह्यूमन बीइंग भी इन्वॉल्व है. अगर कोई बड़ा सा प्लांट, मैंने पहले भी आपको वीडियो में दिखाया था कि एक बड़ा सा प्लांट रॉक के बीच में चला जाता है, तो उसकी जड़ें उसको स्पेस देने के लिए उसको रॉक्स को काटती चली जाती है, और उस जड़ों में जो माउंटेन, इसमें प्लांट्स में भी कुछ एसिड होता है जो वो रॉक को ख़त्म करते चला जाता है, पार्टिकल्स उसके होते चले जाते हैं, अपना स्पेस बनाता चला जाता है ट्रीज. तो दीज आर द बायोलॉजिकल वेदरिंग. Next we have Moss movement. Moss movement means also bring changes in the earth's surface. They are caused of gravity by which pulls all the material downwards. है ना. मॉस मूवमेंट्स में मतलब खिसकना, एक कोई लैंड एक जगह से दूसरी किसी चीज़ से खिसकना. ये 3 तरह की होती है मॉस मूवमेंट: लैंडस्लाइड, अर्थ फ्लो और मड फ्लो. लैंडस्लाइडिंग देखी होगी आपने, माउंटेन्स और हाइल्टीज में आती है ना, आती जाती है ना. So agent of denudation. Denudation means bare or nude, means upper surface gradually it can change by the time or by the weather और temperature. तो इसके जो एजेंट है denudation के वो सब क्या है? पानी और हवा तो मेन फैक्टर है ही, उसके अलावा रिवर, रेन वाटर, आइस एंड ग्लेशियर and sea waves and winds, all these are the main factor of the denudation. कोई भी सरफेस, अर्थ की सरफेस को चेंज करने के लिए ये सब जिम्मेदार होते हैं, है ना. चाहे वो रॉक हो, कोई माउंटेन हो, या अर्थ का सरफेस हो, या प्लेन हो, या रिवर हो. रिवर में भी चेंज आता है, जैसे नाउ डेज हम देख रहे हैं सारी नदियाँ सूख चुकी है, सिर्फ बारिश में ही पानी होता है.
और आज से 50 साल पहले उनमें हमेशा पानी रहता था। तो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ये चेंजेस आया है कि अब अर्थ सिर्फ नदियाँ सिर्फ कब बहती है, सिर्फ बारिश के दिनों में पानी आता है ना। ऐसे ही बहुत सारे चेंज आए हैं, जैसे माउंटेन बहुत सारी जगह पे बहुत कम देखने को मिलते हैं, छोटे हो गए हैं, या उनमें फॉरेस्ट ख़त्म हो गया है, या प्लेन्स में चेंज आया है कि वो जो सॉइल है अब फर्टाइल नहीं रहेगी, बंजर हो गई है, या फॉरेस्ट जो हो गए हैं वो प्लेन लैंड होके एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये जो हम ह्यूमन बीइंग भी रिस्पॉन्सिबल है बायोलॉजिकल चेंजेस में, और बाकी ये सब रिवर, रेन वाटर, आइस, ग्लेशियर्स एंड सी वेव्स और विंड तो है ही है। नेक्स्ट वी हैव वर्क्स ऑफ द रिवर एज एन एजेंट ऑफ इरोजन। रिवर सबसे बड़ा एजेंट है किसी भी सरफेस को चेंज करने के लिए, है ना, क्योंकि रिवर किससे बनती है, बारिश से ही, रेन से ही बनता है, रेन वाटर से। तो इसमें रिवर को इसमें 3 कोर्स में या 3 स्टेजेस में डिवाइड कर लिया गया है ना, जोग्राफिकल की उसकी वजह से। अपर स्टेज या माउंटेन स्टेज, जहाँ पे ओरिजिन होता है, यहाँ जहाँ वो सिल्ट और सॉइल और माउंटेन रॉक्स और पार्टिकल्स बहा के नीचे लेके आती है रिवर। देन मिडिल कोर्स प्लेन, जहाँ पे उसका बहाव थोड़ा लिमिटेड हो जाता है, कंट्रोल में आता है, एक फ्लो में बहती है, और जितनी भी ऊपर से वो सॉइल और फ्लो में जो लेके आई है पार्टिकल्स, वो यहाँ प्लेन में छोड़ देती है और प्लेन को कैसा बनाती है, फर्टाइल लैंड बनाती है मिडिल कोर्स और प्लेन स्टेज में। नेक्स्ट वी हैव लोअर कोर्स और द डेल्टा स्टेज। डेल्टा स्टेज उसकी लास्ट स्टेज है जहाँ वो ओशियन में गिरती है ना रिवर, और क्या करती है, लोअर कोर्स में वो जो सिल्ट और सॉइल है वो वहाँ पे पीछे छोड़ती हुई चली जाती है, और पानी उसमें ओशन में गिर जाता है डेल्टा स्टेज, और अपना जो फेस है वो स्प्लिट हो जाता है, कई सारे मुहानों में उसका पार्ट बन जाता है, और कई बीच बीच में सिल्ट और सॉइल बीच में छोड़ती हुई चली जाती है ना। दीज आर द स्टेजेस, उसके रिवर की स्टेजेस हैं। और इसमें रिवर बहुत सारे ऊपर से माउंटेन से जो पार्टिकल्स लेके आती है, सॉइल जो लेके आती है, वो सॉइल जो है प्लेन वैली में आके अब फर्टाइल बनाती है वो सॉइल, एग्रीकल्चर के हिसाब से वो हमारे लिए यूज़फुल है। और वी शेप्ड वैली में आती है तो वाटरफॉल्स रैपिड की तरफ रैपिडली बहता है, तो ऊपर की तरफ जो होता है वो तो रैपिड को स्पीड रहती है, वहाँ पे वो कुछ बनाती नहीं है, वहाँ से वो लेके आती है। लेकिन मिडिल कोर्स में स्टेबल हो जाती है उसकी स्पीड, और पानी बहता रहता है नीचे, वो सॉइल और वो छोड़ती भी चली जाती है प्लेन कोर्स में। और नेक्स्ट में फिर है लास्ट स्टेज डेल्टा के, जहाँ पे वो ओशियन में मिलती है और क्या लेके आती है, एंड सो द डिपोजिशन प्रोसेस बिगिन्स एंड द रैपिड स्पीड द लेवल ऑफ इट्स बेड राइजेस एंड द रिवर गेट्स डिवाइडेड इनटू मैनी चैनल्स called distributaries before its fall into the sea, thus the formed deltas of the river which contain deposits and alluvial soil and hence they are very fertile. तो अब जो भी लेके आती है ऊपर से, कंक्लूजन इज माउंटेन स्टेजेस से वो जो भी लेके आती है वो यहाँ प्लेन में या डेल्टा स्टेजेस में छोड़ती है, जो कि हमारे लिए फर्टाइल है, वो सॉइल यूज़फुल है एग्रीकल्चर के लिए और बाकी अदर कंस्ट्रक्शन और उसके लिए भी। बजरी जो बनती है वो कहाँ से, पहाड़ों के पार्टिकल से ही लेके आती है नदी, और वो हमारे लिए यूज़फुल है जितनी भी है ना। और बड़ी जो ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, ये सब फर्टाइल है ना। एमपी में सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल मिलती है जिसमें कपास होती है, और एमपी में सारी नदियाँ आके प्लेन की तरफ कवर करती है, जैसे यमुना हो गई, ये सब है ना। तो ये यूज़फुल है इसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ये जो सॉइल लेके आती है रिवर। और रिवर बहुत बड़ा एजेंट है इसका चेंजेस का, सरफेस चेंजेस का, जिसमें इरोजन मेन आता है। तो दीज थिंग्स आर देयर इन आवर चैप्टर। नेक्स्ट हम कवर करेंगे formation of soil or soil, why soil is important, and varieties of soils in our India. Thank you children. Just do the work of worksheet which I am giving in this last at last of the video. It is very useful for your exam, so do it and send your work properly and regularly, all of the children. Be sincere and read all the things on the regular basis. Thank you.